Assalamu alaikum everyone, welcome back. I am Momna, your maths instructor, and I am here with a new chapter today which is estimations. अब estimations usually paper 1 में आता है, ठीक है. इसके सवाल paper 1 में आते हैं and they are usually of 2 to 3 marks. They're very easy questions. So they're literally like free 2-3 marks in your paper, and hopefully after these videos you will not have any trouble in attempting these questions. Before I start the topic, I want to talk about digits. डिजिट्स होते क्या है, आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं. अब 10 डिजिट्स में यूजली सबसे पहले दिमाग में आता है कि दे विल बी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर योर फर्स्ट 10 डिजिट्स. इट इज़ नॉट ट्रू. आपके डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं. सो इट गोज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दीज आर योर 10 डिजिट्स. इसके अलावा कोई भी नंबर आपका एक सिंगल डिजिट नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर जिसमें आपके पास 1 होता है और आपके पास 0 होता है. सो आपके पास टोटल 10 डिजिट्स है और आपके सारे जो नंबर्स हैं दे आर मेड यूजिंग दीज 10 डिजिट्स. सो बेसिकली यू कैन कंबाइन डिजिट्स टू फॉर्म इन्फिनिट नंबर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब आपके पास जो 10 है इसमें आपके पास 2 डिजिट्स हैं. सवाल ये है, द क्वेश्चन इज, आर बोथ ऑफ दीज डिजिट्स सिग्निफिकेंट? Is 1 significant? Is 0 significant? If you are thinking that 10 is a 2-digit significant number, it is not correct. ये आपके पास सिर्फ एक significant number है इसमें, which is 1. How do I know? For this we have some rules for significant figures. सबसे पहला रूल आपके पास क्या है? That all non-zero digits are significant. नॉन ज़ीरो डिजिट्स में आपके पास कौन से डिजिट्स आते हैं? 1 to 9. सो 1 to 9 एनी नंबर इज़ सिग्निफिकेंट विदाउट अ डाउट. तो ऊपर जो हमने 10 लिखा था उसमें 1 तो सिग्निफिकेंट ही है. तो आपके पास इफ़ आई से हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 192, 1 इज़ a digit other than 0, so it's significant. 9 is a digit other than 0, it's significant. 2 is a digit other than 0, it's significant. So 192 is a 3-digit significant number. उसके बाद 3 है. 3 आपके पास 1 to 9 है, ठीक है. सो इट्स अ नॉन ज़ीरो डिजिट, सो इट्स सिग्निफिकेंट. देन यू हैव 83.76. अगेन it has 4 non-zero digits, so it has 4 significant numbers, and then 5.4 has 2 significant numbers. Any digit other than 0 is always significant. 0 की significance के लिए हमारे पास थोड़े से rules हैं, ठीक है. The first rule is that all zeros between non-zero digits are significant. For example, 506. Now 5 is a non-zero digit, 6 इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट और इनके दरमियान में एक ज़ीरो है. अगर आपके पास इस तरह का केस है, अगर आपके पास एक ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स में या दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान ट्रैप्ड है, देन इट इज़ सिग्निफिकेंट, विच इज़ वाई यू ऑल्सो से ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर significant. For example, 1.09. Now again you have 9, you have 1. तो आपका जो ज़ीरो है वो 1 और 9 के दरमियान ट्रैप्ड है, regardless of the decimal. So this is also a 3-digit significant number. It has 3 significant digits. Always remember that trapped zeros with or without a decimal are significant. Another example is 70.8001. अब आपके पास ये कितने डिजिट या कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इस नंबर में? 7 is significant because it's a non-zero digit. 8 is significant because it's a non-zero digit. 1 is significant because it's a non-zero digit. तो 3 तो right away आपने देख ली. पीछे आपके पास 3 zeros हैं and we have to decide if these 3 zeros are significant or not. Let's have a look at this first zero. अब ये पहला ज़ीरो आपका 8 और 7 के दरमियान ट्रैप्ड है, right, which are both non-zero digits and which are both significant. So yes, this zero is also significant. Look at these two zeros. ये दोनों ज़ीरो 8 और 1 के दरमियान ट्रैप्ड हैं. So ये दोनों zeros भी significant है. These two zeros are also significant. So all in all, this is a 1 2 3 4 5 6-digit significant number. So फर्स्ट रूल ऑन ज़ीरोस, पहला रूल क्या है? आपके सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं विदाउट अ डाउट. जो ज़ीरोस पे पहला रूल अप्लाई होता है वो कौन सा है? ऑल ज़ीरोस दैट आर ट्रैप्ड बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स या बिटवीन सिग्निफिकेंट नंबर्स आर सिग्निफिकेंट ऑल्सो.
ट्रैप जीरोज जिनको कहते हैं. दिस इज़ अ ट्रैप जीरो, सो दिस इज सिग्निफिकेंट. दिस इज़ अ ट्रैप जीरो, दिस इज सिग्निफिकेंट. These three are trap zeros, so these three are also significant. The third rule that you have for significant figures is that in a decimal, emphasizing on in a decimal, all zeros after a non-zero digit are significant. For example, 6.090. अब 6 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो वो तो सिग्निफिकेंट है. 9 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो 9 भी सिग्निफिकेंट है. ये वाला जो ज़ीरो है ये 6 और 9 के दरमियान ट्रैप्ड है तो ये भी सिग्निफिकेंट है. वी आर नाउ फोकसिंग ऑन दिस ज़ीरो. द रूल इज़ all zeros after a non-zero digit are significant in a decimal. This is a decimal and this 9 is a non-zero digit. So इसके बाद जितने भी zeros आएंगे वो significant होंगे तो ये ज़ीरो भी आपके पास significant है. So this is a 4-digit significant number. ये देखें, this is 0.500. Now we're talking about this 5. इस ज़ीरो की हम बाद में बात करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 5 is a non-zero डिजिट, सो इट इज़ सिग्निफिकेंट. ये दोनों ज़ीरोज़ आपके पास एक तो डेसिमल में आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे हैं तो ये दोनों ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट है. लेट्स टॉक अबाउट 0.10. अब लाइक आई सेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ज़ीरो इन अ वाइल, सो इसको भी छोड़ दें. 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है तो 1 इज़ सिग्निफिकेंट. ये ज़ीरो आपके पास एक डेसिमल में आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट. Another word that we use for such zeros are trailing zeros. Now always remember that trailing zeros without a decimal are not significant. ये जो आपके पास यहाँ पर जितने भी zeros हैं, these are trailing after the decimal. डेसिमल के बाद की बात करें हम तो हमने कहा है कि ये अगर एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएंगे तो ये सिग्निफिकेंट होंगे. बट इफ़ दिस इज़ द केस विदाउट अ डेसिमल, फॉर एग्जांपल 600. अब यहाँ पर तो कोई डेसिमल नहीं है, इवन दो यहाँ पर भी आपके एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, बट दिस इज़ without a decimal, so these zeros are not significant. Always remember that trailing zeros with a decimal are significant. मतलब क्या है कि इन अ डेसिमल अगर आपका एक ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है. लेकिन अगर यही केस विदाउट डेसिमल है, सो ओवर हियर लाइक 600, तो ये दोनों ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, अब ये मेरे पास एक 4 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाले दोनों ज़ीरो स्ट्रैप हो जाएंगे बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, दिस एंड दिस. ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल आ रहा है, राइट? इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट 7500, अब कोई डेसिमल नहीं है तो ये दोनों ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट. Only 7 and 5 are significant, so this is a 2-digit significant number. Always remember, ये केस जो नंबर 3 है ये सिर्फ डेसिमल्स में ट्रू होता है. अगर डेसिमल में आपके पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरोज़ आते हैं तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट दिस इज़ ओनली द केस इन अ डेसिमल. द लास्ट रूल दैट वी हैव इज़ दैट इन अ डेसिमल all zeros before a non-zero digit are not significant. अब जो non-zero digit के पहले आते हैं डेसिमल में वो आपके पास होते हैं लीडिंग ज़ीरोज़. सो लीडिंग ज़ीरोज़ विद और विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल आपके पास ये केस है 0.021. नाउ दिस इज़ अ लीडिंग ज़ीरो, ठीक है, ये आपके पास बिफोर अ नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर आ रहा है. दिस इज़ अ लीडिंग ज़ीरो, सो बोथ दी ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट. 2 इज़ सिग्निफिकेंट, 1 इज़ सिग्निफिकेंट, सो दिस इज़ अ 2-digit significant number. Let's have a look at another example. 0.0603. अब 6 और 3 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बाय रूल नंबर 1 ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज दिस इज़ ट्रैप्ड बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स. These two numbers or these two zeros are leading zeros. They are in a decimal, ठीक है, and they are before a non-zero digit, तो ये दोनों significant नहीं है. So this is a 3 significant figure number, ठीक है. उसके बाद let's have a look at this example. अब ये दोनों leading zeros हैं. Again 0075 basically just means 75. So this is also a 2-digit significant number. आपके पास ये वाले दोनों zeros भी leading हैं and with or without decimal it does not matter. अगर आपके पास ये इस तरह भी लिखा होता
तो भी आपके पास these three zeros would have been not significant. So always remember leading zeros with or without decimal are not significant. अब जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि ये वाला ज़ीरो छोड़ दें, ये वाला ज़ीरो हमने क्यों छोड़ा था? Because these zeros are leading zeros and they are not significant. So this is a 3 significant figure number, this is a 2 significant figure number, this 4 significant figure number, and this is again a 2 significant figure number. These are the 4 rules that you have for significant figures. Please make sure that you understand and learn these 4 rules, because this will form the base or the foundation for all the questions in estimation. I hope this is clear, and I will see you inshallah in the next video on estimations. Take care everyone. Allah Hafiz.